جو ہے کہ وہ بھی خوف زدہ ہے, وہ بھی ڈرا ہوا ہے. ایلیا کو خدا اس کے اوپر اپنا کلام جو ہے کہ وہ نازل کرتا ہے. خدا کہہ رہا ہے, حکم دے رہا ہے کہ یہاں سے چلا جا اور جو جگہ میں تجھے دکھاتا ہوں, جو دور یعنی کہ رہ کر چھپا رہ, اور جب تک میں تجھے نہ کہوں کہ وہاں سے ہلنا نہیں ہے. جو اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کہیں سے بھی یعنی کہ ان کو مہیا کر سکتا ہے, ان کو وہ دے سکتا ہے. ایلیا جو ہے کہ اس کا بھی یعنی کہ خدا ہی کے اوپر بھروسہ ہے کہ خدا نے جو کہہ دیا وہ کرے گا بھی, وہ مہیا کرے گا بھی, وہ دے گا, وہ بخشے گا. ہالولیہ ہالولیہ. آئے خدا کے کلام کی طرف رجوع لائیں گے, خدا کے کلام کی طرف ہم توجہ دیں گے. جو کلام پر توجہ دیتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا. تو ہم خدا کے کلام کی طرف غور کریں گے. پہلا سلاطین کی کتاب میں سے اس کا 17واں باب ہے. 17واں باب جو ہے اس کی دوسری جو آیت ہے, اور یہاں سے میں خدا کے کلام کو پڑھوں گا بڑی توجہ کے ساتھ. میں اور آپ جو ہے کہ وہ ہم سنیں گے, اور خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے, اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر, اور کریت کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ, اور تو اسی نالا میں سے پینا. اور میں نے قوموں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کرے. سو اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا, کیونکہ وہ گیا اور کریت کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے رہنے لگا. اور کوے اس کے لیے صبح کو روتی اور گوشت, اور شام کو بھی روتی اور گوشت کے لاتے تھے, اور وہ اسی نالے میں سے پیا کرتا تھا. اور کچھ عرصے کے بعد وہ نالا سوکھ گیا, اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہ ہوئی تھی. خدا کا پاک کلام بڑا سنا جانا ہم سب کے لیے بس کا شکر. خدا کے پاک کلام میں سے کہ جو آج سلاطین کی کتاب میں سے پرانے عہد نامہ میں سے 17ویں باب میں سے جو خدا نے ہمیں یہ حوالہ دیا ہے, کلام دیا ہے, اور یہاں پر لکھا ہے ایلیا جو ہے کہ وہ بھی خوف زدہ ہے, وہ بھی ڈرا ہوا ہے. اور ایلیا کو خدا اس کے اوپر اپنا کلام جو ہے کہ وہ نازل کرتا ہے, اپنا کلام نازل کرتا ہے, اور اس کو اپنا کلام جو ہے کہ وہ دیتا ہے, اپنا کلام دیتا ہے. خداوند خدا جو عظیم خدا ہے, جو پاک خدا ہے, یعنی کہ وہ اپنا کلام جو ہے وہ اپنے بندہ کو, اپنے پیغمبر کو جو نبی ہے یعنی کہ اس کو وہ پیغام دیتا ہے, اس کو وہ کلام دیتا ہے. اور خداوند اس کو کہتا ہے کہ یہاں سے چل دے. کیا کہتا ہے کہ یہاں سے چل, روانہ ہو جا. اور اب یہاں پر تجھے رکنا نہیں ہے, یہاں پر تجھے ٹھہرنا نہیں ہے, یہاں پر اب تجھے رہنا نہیں ہے, اور یہاں سے کیا کر کہ چل, روانہ ہو جا. کہاں پر؟ کریت کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے, اور وہاں پر کیا کر کہ جا اور چپ رہ, وہاں پر چپ رہ. جب تک میں تجھے نہ کہوں, جب تک میں تجھے نہ فرماؤں, جب تک تجھے میں حکم نہ دوں کہ وہاں پر ہی رہنا. ہالولیہ ہالولیہ. ایلیا کو کیا خدا کہہ رہا ہے, حکم دے رہا ہے, کلام دے رہا ہے, فرما رہا ہے کہ یہاں سے چلا جا, اور جو جگہ میں تجھے دکھاتا ہوں, جو میں نے بتائی ہے, یعنی کہ وہاں پر کتور یعنی کہ رہ کر وہاں پر چھپا رہ.
और जब तक मैं तुझे ना कहूं कि वहां से हिलना नहीं है, वहां से हिलना नहीं है, रवाना नहीं होना, जाना नहीं है, वहां पर ही रहना है। किसको फिक्र है? एलिया को फिक्र है या खुदा को फिक्र है? एलिया फिक्रमंद है या खुदा फिक्रमंद है? खुदा फिक्रमंद है अपने बंदा के लिए, अपने नबी के लिए, कि जो नबी ठहराया हुआ है, यानी कि उसके लिए फिक्रमंद है, फिक्रमंद है, फिक्रमंद है। मेरा और आपका जिंदा खुदा जो है वो फिक्रमंद है। हालेलुया, हालेलुया। वो फिक्रमंद है। वो कभी भी याद रखे, वो अपने अपने खादमों को, अपने बंदों को, अपने नबियों को, अपने लोगों को याद रखे, कभी भी वो मुश्किलात के अंदर जो है वो नहीं छोड़ता, वो नहीं अकेला रहने देता, वो यानी के साथ रहता है, वो साथ रहता है, वो यानी कि उसके साथ खड़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। एलिया के साथ यानी कि खुदा खड़ा हुआ है, क्योंकि उस वक्त जो है कि काल पड़ा हुआ है, ना यानी कि मींह बरसा है जमीन के ऊपर, ना जमीन ने यानी कि अनाज दिया है, ना पैदावार हुई है, पैदावार हुई है। और वो उस वक्त के, उस जमाना के लोग जो है, ना पानी के होने की वजह से, ना खुराक की होने की वजह से यानी कि परेशान है, डरे हुए हैं, खौफ सता है, क्या होगा, कहां से आएगा, कहां से हमें मिलेगा और हम खाएंगे। लेकिन मैं उनके बारे तो ये नहीं कहता कि खुदा ने उनके साथ भी कलाम किया, कि खुदा ने यानी कि उनको भी यानी कि मुहैया किया, या खुदा ने उनको भी दिया, या उनके घरों में भी खुराक होगी। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि बाइबल हमें ये नहीं बताती है कि उस वक्त जो जिस मुल्क के अंदर यानी कि काल पड़ा हुआ है या बारिश नहीं हुई है, कि उनके घरों में भी यानी कि खुराक होगी। लेकिन खुदा, मैं आपको यहाँ पर ये कहूंगा कि सिर्फ तो सिर्फ खुदा जो है, जो उसके मानने वाले हैं, जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, जो उसके ऊपर यकीन रखते हैं कि खुदा जो है वो कहीं से भी यानी कि उनको मुहैया कर सकता है, उनको वो दे सकता है, वो यानी कि खा सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि खुदा उनके लिए फिक्रमंद है भाई, फिक्रमंद है। जो सच्चाई के साथ चलते हैं, खुदा उनको कहीं से भी दे सकता है, कहीं से भी। खुदा का शुक्र होना चाहिए, खुदा का शुक्र होना चाहिए। अगर मुश्किलात के अंदर हमें एक टाइम का भी यानी कि खुराक हमें मिल जाए, खाना मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एलिया को हम देखते हैं यानी कि वक्त बाद जो है कि खुदा यानी कि उसको भूखा नहीं रहने देता, उसको देता है भाई, देता है खाने के लिए। और आगे हम देखेंगे, सीखेंगे खुदा ने किनके, उसके लिए किनको मुकर्रर किया है, किनको मुकर्रर किया। आपका ईमान बढ़ेगा, आपका भरोसा बढ़ेगा। लिखा है कि खुदा कहता है एलिया को कि मैंने कौवों को हुक्म दिया है। किसको हुक्म दिया? कौवों को। वो कौवे बच्चे इनके बाहर जाते हो, उनके हाथ में या टुकड़ा हो, रोटी का हो या कुछ चीज हो, यानी कि वो छीन कर ले जाते हैं, यानी कि कौवे, यानी कि खुदा कहता है मैंने कौवों को हुक्म दिया भाई। कौवों के साथ भी, जान परिंदों के साथ भी खुदा जो है वो कलाम करता है। वो कान रखते हैं लेकिन बोलते नहीं है, लेकिन वो सुनते तो है। यानी कि खुदा कहता है कि मैंने एलिया के सुन कि मैंने कौवों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन परवरिश करेगा भी? कौवे, कौवे जो है, परिंदे जो है कि वो तेरी परवरिश करेंगे। तेरे दिल में कहीं पर अंदर डर है तो निकाल, निकाल। क्यों तू डर रहा है? क्यों तू खौफ सदा है? क्यों तू परेशान है? यानी कि कार की वजह से क्यों तू परेशान है? कहा भी उसने खुद ही आ भी है, उसने खुद आ भी कहा है कि खुदा के 3.5 बरस के बारिश ना हो, है? खुद ही उसने खुदा को ये कहा है कि खुदा 3.5 बरस से बारिश ना हो। एलिया ने कहा, एलिया ने कहा कि
3.5 साल बारिश जमीन पर ना बरसे। तो खुदा ने अपने नबी की बात को माना भाई, नबी की बात को माना, बारिश नहीं हुई, नहीं बरसाई खुदा ने, आसमान को बंद कर दिया, आसमान को बंद कर दिया। खुदा के साथ और एलिया के साथ आप देखें उनके उसमें कितनी यानी कि मोहब्बत है, आपस में कितनी मोहब्बत है। एलिया खुदा के साथ मोहब्बत करता है और खुदा एलिया से मोहब्बत करता है। एलिया खुदा की सुनता है और खुदा एलिया की सुनता है। हालेलुया। आपस में राबता है, आपस में कनेक्शन है। हालेलुया है। तो इसलिए खुदा ने यानी कि एलिया की सुनी है। तो लिखा है कि खुदा ने कहा कि मैं किनको हुक्म किया है, कौमों को मैंने हुक्म किया कि वो तेरी क्या करेंगे, परवरिश करेंगे। हालेलुया। आइए जरा देखें, कलाम में लिखा है कि कौवे जो है वो सुबह को भी और शाम को भी यानी कि अच्छी खुराक। हालेलुया। जिसके लिए आज अगर इंसान के आगे कोई रख दे, मैं कहता हूँ उसके चेहरे पर, उसके चेहरे पर यानी कि बड़ी एक खुशी की लहर जो है वो नजर आती है। यानी कि अच्छी खुराक, यानी कि बड़ा गोश्त या लगा ले, यानी कि छोटा गोश्त अगर उसके आगे रख दे, यानी कि वो यानी कि उसका दिल बाग बाग हो जाएगा, यानी कि वो खुश हो जाएगा कि भी इसने खानदान ने मेरी इतनी बड़ी खिदमत की है। हालेलुया। हालेलुया है। तो कौवे जो है एलिया के लिए वो सुबह को भी और शाम को भी यानी कि वो क्या लाते, गोश्त रोटी लाते। मैं ये नहीं, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि यानी कि मुर्गी का गोश्त था, चिकन था, या बड़ा गोश्त या छोटा। ये लिखा कि वो सुबह को शाम को यानी कि गोश्त लाते, रोटी लाते और एलिया के आगे वो रखते, क्योंकि खुदा ने कहा था, क्योंकि कौवों को खुदा ने कहा था वो यानी कि एलिया के कौवे जो है उनको हुक्म दिया वो तेरी परवरिश करेंगे। अगर कौवे हुक्म मान सकते हैं खुदा का, अगर कौवे खुदा के कलाम को कबूल कर सकते हैं, क्या इंसान जिसको खुदा ने अपने हाथों से बनाया, हालेलुया, अपनी छवि पर, अपनी शक्ल पर, अपनी सूरत पर पैदा किया है, बनाया है, वो खुदा के कलाम को क्यों ना माने? मानना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए, ईमान रखना चाहिए है कि खुदा ने जो कह दिया है, खुदा ने जो फरमा दिया है वो होगा भाई, वो होगा, वो होगा। मैंने पहले फरमाया कि खुदा अपने लोगों के लिए कहीं से भी वो खुराक मुहैया कर सकता है, कहीं से भी, क्योंकि खुदा की आंखें जो हैं वो रोए जमीन को देखती हैं कि कहाँ पर इनके खुराक है, कहाँ पर इनके पानी है। उस वक्त लोग तो वो पानी के लिए तरस रहे थे, खाने के लिए तरस रहे थे, अनाज के लिए तरस रहे थे, लेकिन खुदा ने एलिया के लिए कहां से मुहैया किया? ये नहीं बताया क्या कलाम के अंदर किस इलाका से वो लाते, किस शहर से वो लाते, किस वो घर से लाते हैं? नो, ये बाइबल नहीं बताती। सिर्फ लिखा है कि सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम को वो खुराक लाते थे। हालेलुया, लाते थे। और एलिया भूखा नहीं रहा। हालेलुया, बाकी रहे होंगे, बाकी रहे होंगे, प्यासे होंगे, भूखे होंगे, लेकिन एलिया भूखा नहीं रहा, एलिया प्यासा नहीं रहा, लेकिन एलिया को खुदा ने मुहैया किया। देखे यानी कि खुदा ने एक नाला तलाश किया, खुदा ने देखा कि यहाँ पर यानी कि पानी मौजूद है। खुदा ने कहा कि वहां से पीता रहना, वहां से पीना कि जब तक मैं तुझे ना कहूं। और लिखा है कि एलिया जो है वहां पर ही रहा। ये बाइबल नहीं बताती कि एक दिन रहा, एक हफ्ता रहा, एक महीना रहा या 1 साल वहां पर रहा, लेकिन वहां पर वो कलाम के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक रहा। आज खुदा हमें भी कहे ना तो हमने निकलना है, हमने जाना है, हमने खुदा के हुक्म को मानना है, खुदा के हुक्म को बचाना। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का खौफ यानी कि हमारे अंदर ना हो, खुदा का डर हमारे अंदर ना हो कि तुम्हारा दिल ना घबराए,
ہیں ہم گھبرا جاتے ہیں مصیبتوں کو دیکھ کر, حالاتوں کو دیکھ کر, مشکلاتوں کو دیکھ کر. خوف زدہ, کیونکہ ہم کیا ہیں, ہم انسان ہیں, انسان ہے, انسان ہے. انسان جو ہے کہ وہ خوف زدہ ہوتا ہے, ڈر جاتا ہے. ٹھیک ہے. رات کو ایک جگہ پر پروگرام ہوا تو بڑا بہادر میں کہتا ہوں کہ بارش بھی ہونا شروع ہو گئی ہے. لیکن خدا کے بندہ نے کہا کہ سبھی اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. کیا کہا کہ سبھی اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے, اور سبھی خادموں نے سبھی نے کیا کیا, اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, کہا کہ بارش تھم جا. اور خدا کے بندہ نے کہا کہ عبادت تک یہ بارش نہیں ہوگی, لیکن عبادت کے بعد یہ بارش ہو جائے گی. تو ویسا ہی ہوا کہ عبادت کے بعد جب ہم سیڑھیوں سے نیچے اترے تو کام شروع ہو گیا. یعنی کہ یہ ایمان تھا, یہ خدا پر اس کا بھروسہ تھا. تو ایلیا جو ہے کہ اس کا بھی یعنی کہ خدا ہی کے اوپر بھروسہ ہے کہ خدا نے جو کہہ دیا وہ کرے گا بھی, وہ مہیا کرے گا بھی, وہ دے گا, وہ بخشے گا. تو جتنے دن بھی یعنی کہ وہ وہاں پر رہا, لیکن خدا نے کیا کیا, یعنی اس کو مہیا